YouTube پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی سے خبر ہے جہاں یونیورسٹی روڈ پر پولیس کی مبینہ فائرنگ سے 19 ماہ کا احسن جاں بحق ہو گیا۔ اہل خانہ کے مطابق رکشے میں جا رہے تھے کہ پولیس نے فائرنگ کر دی، گولی بچے کے سینے میں لگی اور بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اسی حوالے سے بتا رہے ہیں علی رضا جو اس وقت اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی۔ جی بالکل، اس وقت میں نجی اسپتال موجود ہوں جہاں سے کچھ دیر قبل سفورہ کے قریب جو ہے مبینہ مقابلہ ہوا پولیس اور ڈکیتوں کے درمیان، جس میں گولی سے 2 سالہ جو بچہ ہے وہ جاں بحق ہوا ہے اور باپ بھی زخمی ہوا ہے۔ اس وقت ان کے اہل خانہ میرے ساتھ موجود ہے۔ کیا واقعہ ہے، کیا قانونی کارروائی کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم تو پہلے تو ہم FIR کروانا چاہتے ہیں 302 مرڈر کیس کی، پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ہماری سسٹر فیملی جو ہے وہ اپنے حساب سے بیکری سے کچھ چیزیں لے کے نکلی ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھا تو 4 پولیس والے فائر ہوئے، پسٹل کا گولی بچے کھڑا ہوا ہے اس کو سیدھی گولی سینے میں لگی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی ٹریننگ لیتے ہیں یہ پولیس والے؟ میں آج پاکستان کے عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کیا دہشت گرد تھا چھوٹا بچہ؟ یہاں وہ کوئی اس میں کوئی کرمنل ریکارڈ تھا؟ وہ تو بیچارہ ابھی وہ پیدل چلنا شروع ہوا ہے۔ ہم چیف جسٹس صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو بول رہے ہیں کہ بڑی تبدیلی لے کے آئے ہیں ہم، تو برائے مہربانی کر اس چیز کا نوٹس لیں اور ہمیں انصاف چاہیے۔ جی بالکل، پولیس کی تربیت کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھا دیا اور قانونی کارروائی علی خان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے علی رضا، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو کراچی میں پولیس کی مبینہ گولی کا نشانہ بننے والے احسن کی والدہ بھی غم سے نڈھال ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار پولیس اہلکار اور مسلح افراد ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے، جس کی زد میں آ کر احسن بھی جاں بحق ہو گیا۔ بیٹھ رہے تھے، سامنے پولیس کی بائک تھی، 2 بندے بیٹھے تھے پولیس کے، انہوں نے پسٹل نکالی، چلاتے آ رہے تھے، سائڈ میں دوسری بائک بھی تھی، انہوں نے پسٹل نکالی اور فائرنگ شروع ہو گئی تو میرا میاں ڈر گیا، اس نے کہا کہ خون بہنا شروع ہو گیا بچے کے سینے سے، پھر ہم بھاگتے ہوئے چلے تھے ہاسپٹل۔ اور اب معصوم نشوہ کی بات کرتے ہیں۔ کراچی کے دارالصحت اسپتال کے باہر متاثرین نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اسپتال کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ نشوہ اور دیگر متاثرین کو فوری انصاف فراہم کیا جائے۔ اس موقع پر نشوہ کے والد کیسر علی کا کہنا تھا کہ نشوہ کی صحت بدستور خراب ہے، انتظامیہ اگلے 24 گھنٹے میں اپنی تحقیقات ہم سے اور میڈیا سے شیئر کرے۔ نشوہ جو ہے وہ اسٹل اپنے سینسز میں نہیں ہے اور وہ اسی طرح سے ایک بے ہوشی کی حالت میں، اور ڈاکٹر صاحب اس پر ورکنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے 2-3 دن کا ٹائم دیں تو انشاءاللہ وہ بہتری آئے گی۔ دارالصحت کی انتظامیہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ ہم سے اور میڈیا سے شیئر کرے۔ ادھر بے روزگاری سے تنگ آ کر مورو کا رہائشی غریب گلاب سومرو اپنے 3 بچے بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ گلاب سومرو اپنے 3 بچوں وکاس، انیلا اور وکیلا کو بیچنے کے لیے شہر کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ گلاب سومرو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پال نہیں سکتا اور پڑھا بھی نہیں سکتا۔ بے روزگاری سے تنگ مورو کا رہائشی غریب گلاب سومرو اپنے 3 بچے بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ اپنے تینوں بچوں وکاس، انیلا اور وکیلا کو بیچنے کے لیے بیچ شہر میں بیٹھ گیا۔ اور لاہور سے خبر ہے جہاں بے حسی نے بھکاری کو درندہ بنا دیا۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں بھکاری نے بچے کی میت کو نکال کر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ شہری شجاع الرحمان کے ہاں 7 سال بعد بیٹا پیدا ہوا جو پیدائش کے فوری بعد انتقال کر گیا۔ اس نے بچے کو دفنانے کے بعد قبر کھود کر میت نکال لی۔ بھکاری بچے کی میت کو لے کر چوک میں بھیک مانگتا ہوا پکڑا گیا۔ بے حسی نے اس بھکاری کو درندہ بنا دیا، بچے کی میت کو نکال کر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو ہو گیا۔ شاہ لطیف اور DHA میں شہریوں کو لوٹ لیا گیا جبکہ مختلف کارروائیوں میں کے الیکٹرک کے ایسوسی ایٹ انجینئر سمیت 2 ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی بارے میں علی رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف میں
की वारदात हुई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो मुल्जिमान ने किस तरह शहरी को लूटा और फरार हो गए। डीएचए में शहरी को दफ्तर के बाहर से लूट लिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने शहरी को असलहे के जोर पर लूटा और फरार हो गए। न्यू कराची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कामयाब कार्रवाई करते हुए दो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, छीनी गई रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। दूसरी जानिब सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मजहर मशवानी के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद आसिफ को मंगोपीर रोड से असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम का ताल्लुक MQM लंदन से है। उधर के इलेक्ट्रिक का एसोसिएट इंजीनियर फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलविस निकला। गुलशन इकबाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेकी के मास्टर माइंड जावेद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम MQM लंदन के टारगेट किलर अली का करीबी साथी है। गिरफ्तार मुल्जिम ने टारगेट किलर अली रजा के कहने पर कालेदम सेपा साहबा के दो कारकुनान की मुकम्मल रैकी की और रैकी मुकम्मल होने के बाद दोनों कारकुनान की टारगेट किलिंग की गई। एडिशनल AIG कराची अमीर अहमद शेख ने एतराफ़ किया है कि शहर में रोजाना 25 से 30 मोबाइल फोन्स छीने जा रहे हैं। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने शहरियों के 250 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिए। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के दफ्तर में छीने गए मोबाइल फोन्स की रिकवरी के मौके पर एडिशनल IG अमीर शेख का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम शहर का बड़ा मसला रहा है। आज भी रोजाना 25 से 30 मोबाइल फोन छीने जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम इज अ सीरियस चैलेंज फॉर कराची, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिटी, जो कराची में जो लोग हैं या CPLC है माशाल्लाह या दीगर इदारे हैं, उन्होंने मिलकर कराची के अमन को वापस ले आए। एडिशनल IG अमीर अहमद शेख का कहना था कि शहरियों को चाहिए अपने छीने गए मोबाइल फोन की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। इदारे अवाम की मदद के लिए मौजूद हैं। रिपोर्ट नहीं करते तो इसमें ना एक तो नुकसान ये होता है कि आपका मोबाइल गया हमेशा के लिए, और जो हमारे इतने सेटअप बने हुए हैं जिसपे एनर्जीज लगी हुई हैं वो भी इतने फॉल समझो नहीं हो रहे। CPLC के ताउन से शहरियों के 250 से जायद मोबाइल फोन रिकवर कर लिए। इस मौके पर 25 शहरियों को उनके मोबाइल फोन वापस किए गए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। कराची में नेशनल स्टेडियम के करीब शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई के मामले का IG सिंध ने नोटिस ले लिया। DIG ट्रैफिक ने दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इसी हवाले से दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के इलाके नेशनल स्टेडियम पर गुज़िश्ता रात शहरी गलत पार्किंग पर मना करने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर सीखपा हो गए। शहरी और एहलकारों के हाथापाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अफसरान भी हरकत में आ गए। DIG ट्रैफिक जावेद अली महर ने वाक़े में मुलविस दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया और SSP ईस्ट ट्रैफिक को वाक़े की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। दूसरी जानिब IG सिंध ने DIG ट्रैफिक से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध ने हिदायत की है कि छानबीन की जाए कि एहलकारों और शहरी में तल्ख कलामी की असल वजह क्या है। अगर शहरियों की गलती हो तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। इस्लामाबाद में समाजी कारकुन और कैनेडियन मॉडल खातून के साथ इस्लामाबाद की सड़कों पर औबाश नौजवानों ने बदतमीजी की, मुबैना तौर पर हिरासा किया और 2 घंटे तक पीछा करते रहे। औबाश नौजवान कैनेडियन खातून के ड्राइवर से उसकी रिहाइश के बारे में भी पूछते रहे। विफाकी पुलिस ने खातून की कोई मदद ना की तो उसने वजीर आजम के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। They stopped right in front of it and they're yelling at me to get in the car, and I'm like, are you kidding me? They're like, hey sexy, get in the car. And I start getting really angry and I'm like, ittaqallah, like fear God. Start laughing at me, and that's when I started getting really pissed off. I'm like, I have 2 choices. I'm just gonna walk in the car and ignore them, or I can let my inner Africaner like throw a rock at his head or at the car and smash the window or चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि मॉडल कोर्ट्स बहुत तेजी से मुकदमात निपटा रही हैं। सिर्फ जजेस मेहनत कर रहे हैं और मेहनत रंग ला रही है। 3 माह के अरसे में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 19 लाख से कम होकर 17 लाख रह गई। वह इस्लामाबाद में वकला के इशाये से खिताब कर रहे थे। ट्रैफिक हादसे में कई जिंदगियां मौत के मुंह में चली गईं। हवा की बेटियों पर जुल्म का सिलसिला ना थम सका।
अलमनाक हादसा कई जिंदगियों को निगल गया। मसनूंग में लख बाईपास के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में 11 अफराद जाम बहक और कई जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के शिकार वैन कराची से कोयटा जा रही थी। गुजरखान में 20 दिन पहले अगवा होने वाली 2 बहनों को पुलिस न ढूंढ सकी। मुबैना अगवाकार मोहम्मद फहीम और हिना जुल्फिकार ने किराएदार के बहाने पहले ताल्लुकात बनाए और फिर दोनों लड़कियों समेत गायब हो गए। PIA में खातून अफसर को मुबैना तौर पर हिरासत करने का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद PIA ऑफिस में तैनात खातून ने CEO और HR चीफ को बजरिया ईमेल इल्जाम आयद किया है कि सीनियर अफसर ने तबादले के बहाने कमरे में बुलाकर जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA ने खातून के इल्जामात की तरदीद कर दी। पुलिस वाले खुल्लम खुल्ला जुल्म पर उतर आए। गुजरात पुलिस के एहलकारों ने पेट्रोल पंप के चौकीदार पर तशद्दुद कर डाला। थाना A डिवीजन के 4 मुलाजमीन ने GTS चौक पर वाक़े पेट्रोल पंप पर सरेआम चौकीदार को मारा। DPO गुजरात ने फौरी नोटिस लेते हुए चारों पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज से आइंदा 48 घंटों तक शदीद तूफानी हवाओं और बारिश की पेशगोई कर दी है। तूफानी हवाएं 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने महकमा सेहत, सिविल डिफेंस और NDMA को अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। शहरियों को बिलावजह घर से निकलने से मना कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज से आइंदा 48 घंटों के लिए शदीद तूफानी हवाओं और बारिश की पेशगोई की है। तूफानी हवाएं 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात ने महकमा सेहत, सिविल डिफेंस और NDMA को भी अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। बारिश के दौरान तेज हवाओं की वजह से छतें और दीवारें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। नदी नालों में तुग़यानी से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और जालाबारी हुई है। मुल्तान में आंधी से मुतादिद घरों की छतें उड़ गईं और दीवारें गिर गईं। लियाकतपुर के इलाके बस्ती सुल्तान में तेज आंधी और बारिश के बायस बिजली का खंभा गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। राजनपुर के करीब कोहे सुलेमान पर बारिश के बाद दरगाह सुल्तान में 30,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले से बचात के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया। सखी सरवर के करीब बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी से कबायली इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पानी का जो बहाव है बारिशों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। दकी के 2 गांव कली लंडी मीर खान और कली ईसा जई सैलाब की वजह से तबाह हो गए, लेकिन इससे पहले ही लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। और अब्रे रहमत किसानों के लिए जहमत बन गया। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस पंजाब भर में गंदम की तैयार फसलें तबाह हो गईं। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कटाई में भी पंजाब भर में अब्रे रहमत किसानों के लिए जहमत बन गया। मुल्तान में भी तूफान ने तबाही मचा दी। शदीद आंधी से घरों की छतें उड़ गईं और दीवारें गिर गईं। बारिश और जालाबारी से हजारों एकड़ गंदम भी मुतासिर हुई। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात बरसने वाली बारिश से गंदम की फसल मुतासिर हो गई। किसानों का कहना है कि कटाई का अमल भी ताखीर से शुरू होगा। जड़ा हिल गई ने गंदम दियां ते गंदम आखिरी मरहले दे विच सीगी, इस वजह तो यह दाना हौला हो गया। 40-50% ਇਹਦਾ असरअंदाज होया बारिश की वजह ना। नदी नालों में तुग़यानी ने डेरा गाजी खान में भी तबाही मचा दी। डेरा गाजी खान की तहसील जामपुर के इलाके में पानी गंदम की तैयार फसलें अपने साथ बहा ले गया। मुल्क में आज बारिशें ज़हमत बनी हुई हैं। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज कुल मुल्क में बारिशों का क्रेडिट किसे देती रही हैं, आप भी देखिए। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही, वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देते हैं। तो इसका जो क्रेडिट
और हालिया बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 39 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर 135 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए। हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में सबसे ज़्यादा हलाकतें खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। बारिशों और सैलाब के नतीजे में बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँचा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए, जिनमें बताया गया है कि हालिया बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 39 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर 135 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा घरों को नुकसान बलूचिस्तान में पहुंचा है। हुकूमती दावों की वजीर आज़म की डेडलाइन के बावजूद मार्केट में अद्वियात की कीमतों में कमी न आई। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना है कि जल्द मामलात हल हो जाएंगे। हुकूमत की जानिब से 72 घंटे का हुकूमती अल्टीमेटम गुजर गया, लेकिन दवाओं की कीमतों में कमी न आई। हुकूमत और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के दरमियान तय शुदा 395 अद्वियात की कीमतों में भी कमी नहीं हो सकी। चेयरमैन PPMA अंसर फारूक कहते हैं कि 395 ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाएं हम मार्केट से उठा रहे हैं। फर्स्ट लाइन थेरापी है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं, जिसमें लाइफ सेविंग भी है, वो हम मार्केट से फौरी तौर पे उठा रहे हैं। बाकी जो हमारी 483 हैं उनको भी हम देख रहे हैं कि कहाँ पे गुंजाइश है। अद्वियात साज कंपनियों के मुताबिक डॉलर की कीमत की वजह से कीमत बढ़ाई गई। मार्केट में दवाएं शॉर्ट थीं, हार्ड शिप की वजह से मुश्किलात पेश आईं। कुछ दवाओं की कीमत कम और कुछ ज्यादा करना थी। डॉलर की जो प्राइस एक साल पहले थी पाक रुपीज के मुकाबले में वो 104 रुपए थी, आज डॉलर 142 रुपए का है। तो हमें गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा था कि हमारी इस चीज को, हमारी अद्वियात की प्राइस को बढ़ाया जाए। हुकूमत की जानिब से एक तरफ छापे मारे जा रहे हैं तो दूसरी जानिब दवाओं की कीमतों पर नजरसानी भी की जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद आवाम महंगी दवाई लेने पर मजबूर है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर काबीना में इख्तलाफात सामने आ गए, जिसके बाद स्कीम की मंजूरी मौखर कर दी गई। सवाल ये है कि टैक्स एमनेस्टी किसे दी जाए और किसे ना दी जाए। एमनेस्टी लेने वालों पर कितना टैक्स लगाया जाए और जायदाद की मालियत क्या मुकर्रर की जाए। इसी हवाले से वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी काबीना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी मौखर कर दी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर काबीना में इख्तलाफात सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर मजीद गौर करने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम के रेट्स और जायदाद की वैल्यू पर इख्तलाफ है, जबकि टैक्स एमनेस्टी किसे देनी है और किसे नहीं, इस पर भी एतराज़ात उठाए गए हैं। कराची के एक कारोबारी शख्स ने कहा है कि सियासतदानों के बीवी बच्चों और बहन भाइयों पर पाबंदी न लगाई जाए। वफाकी काबीना ने वज़ीर खजाना असद उमर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। FBR ने काबीना इजलास में टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। असासे डिक्लेरेशन स्कीम को ऑर्डिनेंस की शक्ल में सदर ममलकत को भिजवा दिया जाएगा। सदर ममलकत से मंजूरी मिलते ही ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा और स्कीम पर अमल दरामद का आगाज हो जाएगा। असासे डिक्लेरेशन स्कीम से 30 जून तक फायदा उठाया जा सकेगा। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमती दावों के बरक्स बरामदात में कमी जारी है। इस हकीकत से पर्दा वजारत तजारत के तर्जुमान ने उठा दिया। कहते हैं एक साल में 10 बड़ी अशिया की बरामदात में 56 करोड़ डॉलर्स की कमी हो गई। वकास अजीम की रिपोर्ट में जानते हैं। हुकूमत के बड़ों की जानिब से बरामदात इजाफे के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन घर के भेदी यानी वजारत तिजारत के तर्जुमान मोहम्मद अशरफ ने ही लंका ढा दी है। कहते हैं बरामदात में इजाफे का सिलसिला रुक गया है। एक साल में 10 अशिया की बरामदात में 56 करोड़ डॉलर्स की कमी हुई है। वजारत तिजारत के तर्जुमान के मुताबिक चीनी की बरामदात में 186 मिलियन डॉलर्स, कॉटन यार्न में 116 मिलियन, चावल की बरामदात में 52 मिलियन डॉलर्स और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड मसनूआत की बरामदात में 49 मिलियन डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। चमड़े की मसनूआत में 46 मिलियन डॉलर्स, खाम कपास में 40 मिलियन डॉलर्स, मछली और उसकी मसनूआत में 17 मिलियन डॉलर्स, जबकि खेलों के सामान और काटन के कपड़े की बरामदात में 15 मिलियन डॉलर्स की कमी हुई है। जो चीनी थी, चीनी जो कि हम पिछले साल सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट कर रहे थे, इस दफा गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी, तो सब्सिडी न होने की वजह से उसकी एक्सपोर्ट्स नीचे को गई हैं। नून लीग की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। MNA शाइस्ता परवेज मलिक कहती हैं कि जब हर जगह ये कहा जाए कि हम करप्ट हैं तो कोई कारोबार नहीं होगा। आपने जो सारी दुनिया में जाके ये कहना शुरू किया हुआ है कि हम करप्ट हैं, तो कोई ना इस मुल्क से माल लेगा ना इस मुल्क में माल आएगा। हुकूमत को अब बातों से बढ़कर बरामदात में इजाफे के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। ऐसा ना किया गया तो मुल्की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार हो सकती है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। गुजरांवाला में वजीर आला पंजाब के काफिले को जुल्म के शिकार शहरी ने रोक लिया।
شہری وزیر اعلیٰ سے اپنے جواں سال بیٹے کے قتل کا انصاف مانگتا رہا، لیکن وزیر اعلیٰ نے گاڑی سے اتر کر اس کی بات تک نہ سنی۔ دکھیارا باپ بیٹے کے قتل کا انصاف مانگتا رہا، لیکن پروٹوکول کے نشے میں مست بزدار سائی نے گاڑی سے اترنا تک گوارا نہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اپنے روایتی لاؤ لشکر کے ساتھ گجرانوالہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سینٹرل جیل سے نکلے تو ان کے شاہی قافلے کو ظلم کے شکار شخص نے روک لیا۔ جوان بیٹے کی موت کے غم کا مارا شہری دہائیاں دیتے ہوئے گاڑی کے آگے لیٹ گیا، لیکن بزدار سائی کو ذرا ترس نہ آیا۔ پولیس اہلکار مظلوم باپ کو گھسیٹتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی گاڑی سے دور لے گئے۔ شہری محمد احمد کے 17 سالہ بیٹے کو 3 اپریل کو سفاک قاتلوں نے جان سے مار دیا۔ پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے سے گریزاں ہے۔ معاملہ پتہ چلنے پر وزیر اعلیٰ نے پولیس اہلکار سے احتجاج کرنے والے شہری کی درخواست وصول کر۔ اور اب بات کرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی۔ پشاور میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن مکمل کر کے 5 دہشت گرد مار ڈالے۔ 1 پولیس اہلکار شہید جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ فورسز نے مکان کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پشاور کا معروف علاقہ حیات آباد، جہاں ایک مرتبہ پھر دہشت گرد بڑی کارروائی کرنے آئے، مگر سیکیورٹی اہلکاروں کی مستعدی اور فوری ایکشن کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اہلکاروں نے ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ آپریشن 17 گھنٹے تک جاری رہا۔ گھر میں چھپے دہشت گردوں نے فائرنگ کے ساتھ ساتھ دھماکے بھی کیے۔ فورسز نے تمام 5 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے۔ جھڑپ میں 1 پولیس آفیسر شہید اور 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ ساری رات یہ آپریشن چلتا رہا۔ جب انٹری کی کوشش ہوتی تھی تو ریزسٹنس ہوتی تھی، فائر آتا تھا، اس پہ ہمارے 2 آفیسر جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پشاور کے امن کے لیے، اس صوبے کے امن کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے ایک بڑا میجر آپریشن تھا۔ بعد میں عمارت کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود نے بھی آپریشن کی جگہ کا دورہ کیا۔ شہید ASI قمر عالم کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کی گئی۔ ISPR کے مطابق حیات آباد میں فوج اور پولیس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر دہشت گردوں کی خفیہ پناہ گاہ پر آپریشن کیا۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے زیر استعمال گھر سوات کے رہائشی ناصر کی ملکیت تھا، جبکہ ناصر نے گھر خیبر کے رہائشی جاوید کو کرائے پر دیا تھا۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہونے والے 5 میں سے 4 دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ ایک خودکش حملہ آور افغان باشندہ نکلا۔ اسی بارے میں پشاور سے عالمگیر خان رپورٹ کریں گے۔ پشاور کے علاقے حیات آباد فیز 7 میں مارے گئے 5 دہشت گردوں میں سے 4 کی شناخت ہو گئی، تاہم ایک دہشت گرد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ CCPO پشاور قاضی جمیل کے مطابق مارے جانے والے دہشت گردوں میں ایک خودکش حملہ آور عمران محمد بھی شامل تھا، جس کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ بارود سے بھرے موٹر سائیکل کو خودکش دھماکے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کے مطابق دہشت گرد امجد عرف اجمل، فیروز شاہ اور طارق کا تعلق ضلع خیبر سے ہے، جبکہ امجد عرف اجمل دہشت گردوں کا گروپ لیڈر تھا۔ مکان سے کئی دستی بم، کلاشنکوف اور پستول بھی برآمد ہوئے۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت کی محبت اور حاجیوں کا کوٹا بڑھانے پر ہر پاکستانی ان کے لیے دعا گو ہے، جبکہ امام کعبہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب 2 ملک اور ایک جان ہیں۔ اسی حوالے سے علی اکبر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی اور امام کعبہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ عواد الجہنی کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ امام کعبہ کا اسلامی بھائی چارے کے لیے اہم کردار ہے۔ ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی کاوشیں اس میں بہت شامل تھیں، کہ ان کا آنا یہاں پہ اور یہاں پہ جو انہوں نے محبت دی ہے اور جو اظہار کیا ہے، نہ صرف جو ایگریمنٹس ہوئے بلکہ ان کی محبت کا جو اظہار ہوا ہے، یہ بڑا قابل تحسین تھا۔
इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल्ला अवाद अल जहनी का कहना था कि दोनों मुल्क एक जिस्म जान हैं। इमाम काबा ने पाकिस्तान और मुसलमानों की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि पुलिस की फायरिंग से एक और मासूम जान चली गई। पुलिस फैमिली को हिरासत कर रही है। कहते हैं वक्त आ गया है कि कानून साजी की जाए। वो कराची के जिन्ना अस्पताल में एहसन के वालिदैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी एक ऐसे कानून पर काम कर रही है जिसके अंदर पुलिस की ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस तो हो, बट एट द सेम टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस हो कि अगर पुलिस अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करती है, अगर पुलिस बेदुरेग फायरिंग करती है जिससे निहत्ते लोगों की जान जाती है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रिक्शे के अंदर बच्चे के वालिदैन और उसके 2 भाई बहन साथ थे, उसके कुल 5 लोग थे रिक्शे के अंदर। और जो ऐनी शाहिद हैं, जो रिक्शे में मौजूद खुद लोग थे, वो ये कहते हैं कोई पुलिस मुकाबला नहीं हो रहा था और एक पुलिस अफसर या पुलिस की बाइक आई जिसने ये फायरिंग करके चले गई। सिंध असम्बली में गर्मा गर्मी के बाद अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान कशीदगी की बर्फ पिघलने लगी। अपोजिशन प्री बजट बहस और कायमा कमेटियों की तश्कील पर बात करने पर रजामंद हो गई है। आज़ाद नहरियों की रिपोर्ट देखिए। इजलास में स्पीकर ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वक्फे सवालात से कबल बात करने का मौका दिया तो फिरदौस शमीम नकवी ने स्पीकर और हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन अराकीन आपे से बाहर हो गए। नहीं, आप गए नहीं है उधर, हमारे दौर के केस आप कैसे आप हो गए हैं तो आपको पता चलेगा। दौर के केसेस हैं, आपने नहीं बिठाया, पुराने केसेस हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए स्पीकर से उनके चैम्बर में मुलाकात का इंदिया दिया तो स्पीकर ने उन्हें अपने चैम्बर में शहद खिलाने की दावत दे दी। दिलचस्प जुमलों के तबादलों से माहौल दोस्ताना हो गया। मैं आपके चैम्बर में आके जो मेरी शिकायत, आप तो डरते हैं मेरे चैम्बर में आने के लिए। मैं तो आपको 2 महीने से बुला रहा हूँ, आप आ ही नहीं रहे। उसके बाद भी आया, मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। और कहा है कि आप आए, आपका अपना चैम्बर है वो। इजलास में तय पाया कि अपोजिशन अराकीन प्री बजट पर बहस और कायमा कमेटियों की तश्कील पर हुकूमती अराकीन के साथ बैठेंगे, जिसके लिए 5 रोज भी मुख्तस कर लिए गए। सर एक कर्ज है फिरदौस साहब। जी आप सर 5 दिन रखें, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो उसको एक्सटेंड करते चलेंगे। तहरीक इंसाफ की सिदरा इमरान की थर में आरओ प्लांट्स की तहरीक इल्तवा को स्पीकर ने खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर रद्द कर दी, जिस पर ऐवान शोर शराबे की नजर हो गया। पेरिस के तारीखी कलीसा में आतिशज़दगी से मीनार गिर गया जबकि आग बुझा दी गई। हुकाम के मुताबिक पेरिस के गिरजाघर में लगने वाली आग एक हादसे का नतीजा थी। फ्रांस के 2 अरबपतियों ने 30 करोड़ यूरो के अतिये का ऐलान कर दिया। छत जल गई, एक मीनार भी गिर गया। पेरिस में 850 साल कदीम नोटर डेम कैथेड्रल शोलों की लपेट में आ गया। खौफनाक आतिशज़दगी के बावजूद तारीखी चर्च को मुकम्मल तबाही से बचा लिया गया। आग बुझाने में 400 फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। इस बुलेटिन से इतना ही।